Hi guys, am I audible to everyone? So just a quick check so that we can start with the session. Am I audible to all? Quickly comment in the chat section. So let's start with today's session. तो पहली चीज़ तो सबसे पहले this is basically a doubt session where I wanted to discuss some of the questions from chapter 1 to 8 that you guys feel are difficult or want to address. But मुझे as such आप लोगों के doubts receive नहीं हुए. So I just want to understand is everyone completed all the videos of these particular chapters? Is everyone done with types of business? Corporate governance, questions, sources of finance, taxation, derivatives. Has everyone completed all these chapters before we move to the main content of accounting? So I just want to first of all address this particular thing. Is everyone as per the track of the targets that we are sending to you? You were supposed to complete all your past paper lectures and content lectures till chapter 8. So guys, quickly comment in the chat section. This is an interactive session. Doubts class का तो मतलब ही ये है कि it has to be interactive. मैं going forward next week onwards doubt classes मैं Zoom से कर दूँगी. And I want everyone to keep their video on when I am taking session via Zoom so that we can have a quick, more better interaction. बिकॉज नॉर्मल हम लोग टेक्निकल डिस्कशन इस मीडियम के थ्रू करते हैं, बट जब टॉक सेशन शेड्यूल्ड रहेंगे या फिर आपके डाउट सेशन शेड्यूल्ड है गोइंग फॉरवर्ड, वी विल मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग बाय जूम सो दैट वी कैन हैव बेटर इंटरेक्शन. Okay, so Nitigya is saying that she has not completed all the videos. So guys, मैंने इसीलिए इस week नया topic move on नहीं किया because there were a lot of students who have just started with the course. A lot of students are about to start with the course because you know IFOI results are going to be out next week. So अगर आप लोग नहीं aware हो तो all the students who have given their exams from IFOI, results of basically the CS, CB and CM subjects will be out on 2nd July 10:30 PM. You must have received notification from team as well related to same. Now good important thing is that do notify us with your results as well because जितना anxiety आपको है, जितनी nervousness आप में होती है, same excitement level हम लोगों में भी उतना ही है. So पहले क्या होता था कि IFOI used to display their results like II is doing currently, but अभी IFOI is just showing results on your login. तो हमें जब आप के रिजल्ट्स तब तक नहीं पता चलेंगे जब तक आप हमें रिजल्ट्स अपने नहीं बताओगे. तो irrespective of whether you are able to clear or not, do make sure that you are telling the team about your result because sometimes it happens कि they keep on asking from the students but students don't disclose their results and at later point we come to know कि okay this particular student has cleared or this particular student has not cleared. तो चाहे जैसा भी आपका रिजल्ट लेता है, डू मेक श्योर दैट यू आर नोटिफाइंग द टीम विद योर रिजल्ट फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, इस यही मेरा मेन रीज़न है कि मुझे काउंटिंग वाले चैप्टर्स पे बेसिकली मूव ऑन करना था, बट आई वांटेड टू गिव यू ऑल टाइम सो दैट यू गाइस कैन कंप्लीट एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स बिफोर वी स्टार्ट विद आवर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कंटेंट. बिकॉज एक बार हमने वो स्टार्ट किया, एक बेसिकली आपका चैप्टर 9 to 12 वाला सेक्शन है, एक आपको चैप्टर 13 to 14 रेशियोज और I mean इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज वाला सेक्शन है. उसके बीच में बस 2 चैप्टर्स है विच आर जस्ट इम्पॉर्टेंट, बट वो भी 5 मार्कर्स ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं. एंड रेस्ट लास्ट वाला जो यूनिट है आपकी 19 to 22 वो इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट these chapters are for base building and can be tested in IFOA in the form of MCQ plus in the form of 5 markers questions. Now let's come to one of the most important questions जो अभी II students, I can see that lot of II students are there right now, although वैसे आप लोग लाइव क्लासेस नहीं लेते but it's good to see कि अपडेट के बाद आप लोग लाइव क्लासेस ले रहे हो. तो एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है इस we have created the video for the same, तो team will be circulating that video by today EOD, जिसमें I have taken because every subject CB1, CB2, CM1, CM2, CS1, CS2 to do go through that particular video because that will help you to understand कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ और आपको गोइंग फॉरवर्ड हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं.
तो बहुत सारे जैसी आई की नोटिफिकेशन आई, वी वर गेटिंग मेनी क्वेश्चंस, वी आर स्टिल गेटिंग क्वेश्चंस, एंड कि वेदर वी नीड टू डू पास पेपर्स, डू वी नीड टू वॉच द वीडियोज. सो गाइस, yes, everything remains the same. The only thing that has changed with respect to II 100% MCQs movement is that you won't be getting any subjective question, be it for 5 mark or any 20 marker question. ठीक है, तो जो 20 marker question, जैसे मैंने आपको समझाया था कि CB1 में जो 20 marker question होते हैं, ओरिएंटेशन लेक्चर में I told this thing कि जो CB1 में 20 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे बड़ा हर्डल होता है पेपर ना क्लियर करने का. तो आई वाले स्टूडेंट्स के पास अब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यू वोंट बी गेटिंग द 20 मार्कर क्वेश्चन, यू वोंट बी गेटिंग एनी 5 मार्कर क्वेश्चन. अब आप बोलोगे 5 मार्कर भी नहीं आ रहा जिसमें 5 पॉइंट्स बनाने हैं, 20 मार्कर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तो देन दैट मीन्स पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी. नो, पेपर इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बिकॉज नाउ दे वांट 100% ऑफ योर कंसंट्रेशन ऑन द कंटेंट, एंड यूजिंग दैट कंटेंट दे कैन आस्क द क्वेश्चन इन मल्टीपल मैनर, एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर कि व्हाट द आंसर इज. पहले आपके पास डिप्लोमेटिक होने का ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है, MCQ हो रहा है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक करेक्ट आंसर चूज करना है, आपके पास डिप्लोमेटिक होने का ऑप्शन नहीं है. आप ये नहीं सोच सकते अच्छा assuming this that can happen, assuming this can happen. There is no point of taking assumption, there is no option of taking assumption. You just have to choose the correct answer, and that can only be possible when you are thorough with the content. So for II students, how we are going to change the pattern is, you have to go through the videos, because content is again the same, it's just that it's tested in different format. You can skip doing 5 marker questions or 20 marker questions. If I am doing those questions in the class or the past papers lectures, you can just just watch it at 2x speed or 1.5x speed. The reason being why I am saying you to watch is because concepts are still the same. The way of testing has changed. Maybe they ask you the 5 marker question, but ultimately they give you 4 MCQs for that, and you are supposed to choose the correct option, and that option you can only choose once you have understood the question. So for understanding the base correctly, we still need to go through the questions. We have revised assignments, unit tests and mock papers for II students. So you will be getting your updated assignments, updated tests and updated mocks, and you are not supposed to submit it in online format. You can just write it and submit it. So we will be uploading updated assignments max by tomorrow for all II students. IFO students, in case you want to refer to those updated assignments, it's up to you, you can refer, because उसमें हमने सिर्फ MCQs ही cover किया है chapter wise. आपको refer करना आप कर सकते हो, it's just an add-on material for you, but more important for II students. ठीक है, तो अभी क्या ये डाउट्स क्लियर है आपको रिलेटेड टू अपडेटेड पैटर्न, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, तो आई वांटेड टू एड्रेस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. बेसिकली मेनी स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज, लेकिन अभी भी आपका कैमरा ऑन है. और एक अच्छी चीज़ क्या है, इंडिया क्या कर रहा है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि OBA बेस्ड असेसमेंट है. आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया, या तो मार्क्स हैं या नहीं मार्क्स है, और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट इंस्टेंटली अवेलेबल है. तो ये एक बहुत अच्छा मूव है बाय II, but yes, it is going to make your paper difficult. It's not going to be an easy exam, because पहले क्या होता था, अगर हाँ थोड़ा बहुत कंटेंट नहीं भी आता, कुछ नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक का पढ़ा हुआ, स्टिल समहाउ क्योंकि 4-5 पॉइंट्स बनाने हैं, आपको जनरल पॉइंट्स बना देते हो, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बना देते हो, किसी तरीके से क्वेश्चन को बस हमें अटेम्प्ट कर देते हैं. नाउ यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट. इफ यू डोंट नो यू विल लूज, इफ यू नो यू कैन स्कोर वेल. ठीक है, so guys, I just want to understand, especially this is for all II students who are currently taking live. Is the updated pattern clear to everyone before I start with the questions discussion? Any issue to any one of you? जो क्वेश्चंस आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, आप अभी मुझसे लाइव में वो क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हो. Okay, then if you are not answering, then I will assume that you are clear with your updated pattern. तो अब इससे रिलेटेड फिर आपके डाउट्स नहीं आने चाहिए. अब डाउट्स आपके सिर्फ ये आएंगे कि अच्छा मेरे असाइनमेंट में ये डाउट है, मेरे क्वेश्चन में ये डाउट है. अदरवाइज दैट मीन्स यू आर क्लियर विद द कंटेंट. Okay, now
Now, as I told you, and I think you must have received the message as well for the same, that in today's session we are going to discuss doubts. तो मेरे पास as such आप लोगों की कोई भी doubts नहीं आए हैं. I told you that I should receive the doubts by Thursday, but I did not receive doubt except for 1 or 2 doubts that have already been answered. तो why is it so? Why no doubts from your side? पहले तो मुझे आप लोगों से ये चीज़ समझनी है, क्या आप लोगों को सब कुछ आता है, या मतलब या फिर अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है? What exactly is the issue? Why I have not received any doubts? My question is this to every one of you. Or are you guys clear with everything and there are no doubts? If you guys are clear with everything, then let me give you an on the spot test and let's see how you guys are performing. All the tests are ready from our side. If you feel you are good enough, you have completed everything, I can give you tests just after the session and then you can perform and let me know. So what's the reason that I have not received any doubts? देखो मैं आपको ज़बरदस्ती doubts निकालने के लिए तो definitely नहीं बोल रही हूँ, but कुछ चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि येस वी शुड आस्क दीज थिंग्स और आई एम स्टिल अनक्लियर विद दीज थिंग्स, बट आप लोगों का मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया. द डाउट्स दैट आई हैव रिसीव्ड वर वेरी इजी, जस्ट वो भी सेक ऑफ आस्किंग के लिए ऐसा लग रहा है कि बस पूछा हुआ है. तो व्हाई नो डाउट्स टिल दिस पॉइंट? गाइज क्विकली आंसर, अदरवाइज फिर डाउट सेशन का मतलब ही क्या है? And I have seen कि team has messaged to most of the students that you guys have not completed your targets. तो why is this happening? अब तो आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स भी ओवर है और अगर आप वर्किंग हो तो एग्जाम्स का प्रेशर तो वैसे भी आपके पास नहीं है, आपको टाइम तो निकालना ही है. सी इफ़ यू हैव पिक्ड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू हैव टू गिव 100% जस्टिस टू दैट सब्जेक्ट. मेरा सिर्फ एक ही लॉजिक होता है कि या तो आप सब्जेक्ट उठाओ मत, और अगर हम पेपर उठा रहे हैं तो हमें 100 उसको उसी टाइम में क्लियर करना है. मुझे रेपिटेशन ऑफ सब्जेक्ट का मतलब समझ नहीं आता. सो आप अगर पेपर पिक कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि येस आई वांट टू क्लियर इट इन दिस अपकमिंग सितंबर नवंबर, अदरवाइज आई एम नॉट पिकिंग इट. डोंट जस्ट पिक इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पिकिंग कि चलो यार 2 महीने बाद देख लेंगे. अदर ये पेपर ऐसे नहीं निकलता. आई वाले अगर ये सोच रहे हैं कि अब तो OBA हो गया, अब तो हम आराम से MCQs चूज़ कर लेंगे, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, ये मूव सिर्फ इसलिए आया है ताकि ऑनलाइन टाइपिंग की कुछ हम रिलैक्सेशन दे सकें. दिस इज़ नॉट अ मूव टू मेक योर पेपर ईजी. This is a move to help students कि unnecessary the students who are wasting time on online typing, they would be concentrating more on the content and the logic portion. Application part is still there, logic part is still there, and again, more concentration is required on the content part. And for IFO students, there are no changes as such in your pattern. So if there are no changes, that means for you a 20 marker difficult question can come, 8 5 marker questions can be very difficult. So how are you planning to approach those questions? CB1 का एक भी क्वेश्चन इजी नहीं होता, मतलब ये डायरेक्ट बुक वर्क तो बिल्कुल होने का कोई मतलब ही नहीं है IFA के एग्जाम्स में. यू डोंट गेट एनी डायरेक्ट बुक वर्क इन CB1 एग्जाम. आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको पेपर बैलेंस लगेगा ही नहीं. पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ एप्लीकेशन एंड लॉट ऑफ पॉइंट्स मेकिंग. तो आई वाला एग्जाम सब उनके लिए ईजी आया है, ईजी हो गया जिनको थोड़ा सा स्ट्रगल होता था पॉइंट्स बनाने में. अब वो स्ट्रगल आपका खत्म हो गया. बट एक दिक्कत क्या है, इसके बाद जब आप हायर एग्जाम्स में मूव करोगे ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक पॉइंट्स एट द टाइम ऑफ हायर एग्जाम्स, बिकॉज CB1 के बाद हायर एग्जाम्स में हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है बिकॉज वी लर्न हाउ टू मेक पॉइंट्स. अब CB1 भी OB हो गया, इसके बाद जब आप हायर एग्जाम्स दोगे ना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपका वो सब्जेक्टिव लिखने की आदत ही नहीं है, किसी भी एग्जाम में आपको इंडिया के एग्जाम में नहीं रहेगी. ठीक है. सो गाइज हाउ डू यू वांट अस टू प्रोसीड? शैल आई गिव यू मोर टाइम? Maybe we can meet up on weekday as well to discuss the doubts.
what exactly do you want, or you feel that we are good enough with the questions discussion and we can move forward with our next session basically on accounting and balance sheet creation. अब ये क्वेश्चन इंडिया वालों का, फिर अगेन मैं ये चीज़ मैंने वीडियो में कवर करी है बट अभी मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आपको लगता है कि बैलेंस शीट के क्वेश्चन अभी रिलेवेंट है, इरेलीवेंट नहीं है, आपके पास सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो सकती है और आपको 5 नंबर में वो पूछ सकता है कि अच्छा आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो एसेट्स लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, स्टिल नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. इट्स जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग यू कैन परफॉर्म दोज कैलकुलेशंस इन योर रफ फॉर्म. तो ऐसा नहीं है कि जो हम क्लास में करेंगे अब आपके लिए वो इररिलेवेंट है. मैं क्लास में इसी तरीके से चीज़ें करवाऊंगी दैट इट इज़ रेलिवेंट फॉर बोथ द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. Plus at regular intervals we will be having separate sessions for IFO and II. If required we will have separate talk sessions for II students. First thing. Second thing, अगर मुझे बहुत ज़्यादा MCQs किसी सेशन में एड्रेस करने होंगे तो MCQ वाला सेशन आपको ये नहीं सोचना कि ओनली II students will attend. You know कि MCQs will be tested in IFO as well. So it is relevant for both IFO and II. और अगर हम कुछ ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं विच इज़ मोर रेलिवेंट, लाइक कोई अब मैं 20 मार्कर क्वेश्चन पिक कर रही हूँ, 5 मार्कर पिक कर रही हूँ, तो जब आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें हम लोग ये क्लियरली कन्वे कर देंगे कि दिस इज गोइंग व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्कस इन टुडे सेशन. सो इट्स अप टू यू, इफ यू आर प्लानिंग फ्रॉम आई यू कैन स्किप दिस सेशन. सो ऐसे सेग्रीगेशंस हम लोग क्लास वाइज अब करना स्टार्ट करेंगे. तो जस्ट रिमेंबर कि टू सी द मैसेज वेरी केयरफुली कि व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्कस एंड अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट. But if you are coming live, you really have to participate because otherwise आप एक theory subject plan कर रहे हो and if you are not finding out time to participate, if you are not participating, what's the point of coming live? So CB1 में देखो, मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज़ बताई थी. Many students pick CB1 after clearing CS1 और CM1. मैं आपको एक करेक्ट अप्रोच बताती हूँ. बेसिकली लाइक मैनी स्टूडेंट्स हियर आर फ्रॉम कॉलेज एंड दे गेट कंफ्यूज कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम्स को पैटर्न क्या होता है. सबसे पहला एग्जाम जो हम रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को दैट इज़ ईदर CS1 और CM1. CS1 इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ लाइटर एग्जाम एंड CM1 इफ़ यू वांट टू गो डायरेक्टली टू अ बिग एग्जाम. अगर आपका CS1 CM1 निकल जाता है या आपने प्लान कर रहे हो तो उसके साथ हम आपको कॉम्बिनेशन लेने के लिए बोलते हैं CB2 इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम. रीज़न बीइंग देखो, CB2 एक ऐसा एग्ज़ाम है विच इज़ नॉट ईजी एग्ज़ाम बट येस इट्स ईजी टू क्लियर बिकॉज CB2 में क्या है, कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है बट द स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस, द पेपर पैटर्न इज़ रिलेटिवली ईजी. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंटेंट वेल, इफ़ आवर नॉलेज इज़ गुड तो पेपर आराम से निकल जाता है. अब मैं डायरेक्टली CS1 वाले बच्चे को हम लोग ये नहीं बोलते कि आप CB1 उठाओ, CM1 वाले बच्चे को हम डायरेक्टली CB1 उठाने के लिए नहीं बोलते. CB1 भी हम ऑलवेज से कि यू शुड बी गेट योर फोर्थ एग्जाम, CS1 CB2 देन CM1 CB1. अब इशू क्या है CB1 में, देखो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बुक से कुछ भी नहीं आता, नथिंग एट ऑल. ये चीज़ हम लोग हायर एग्जाम्स में जब आप आगे CB1 की क्लासेस करोगे, SPs की क्लासेस करोगे ना, आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग इन दोज क्लासेस दैट कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट येस कंटेंट इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर पास्ट पेपर्स. अभी क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल एग्जाम्स, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, CB2 पढ़ रहे हो, तो आपको एक आदत होती है कि हमने बुक से पढ़ा, उस बुक से जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हमने पास पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड समहाउ सिमिलर स्टाइल ऑफ क्वेश्चन मेरे एग्जाम में टेस्ट हो गया एंड आई एम एबल टू क्लियर. CB1 इज़ नॉट लाइक दिस. एवरी क्वेश्चन इन CB1 इज़ डिफरेंट. सबसे बड़ी स्ट्रगल तो ये है. आप अगर MCQ भी उठाओगे ना तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ MCQs आर डिफरेंट. अगर कोई एक आधा क्वेश्चन रिपीट करता भी है तो भी वो डिफ़िकल्ट स्टाइल क्वेश्चन ही होता है. और आजकल इशू क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मान लो 2019 में आया था, आपने वहाँ से सेम कॉपी करके पॉइंट्स IFO में लिख दी, तो प्लेगैरिज्म का बहुत बड़ा इशू है कि आप पास पेपर क्वेश्चन से भी डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते. यू हैव टू चेंज द वर्डिंग ऑफ योर आंसर्स. अब CB1 में क्या दिक्कत होती है, एक तो हम कॉलेज के बाद अगर उठा रहे हैं या कॉलेज के साथ ही उठा रहे हैं या फिर वर्क में भी अगर हम उठा रहे हैं तो इतने पॉइंट्स लिखने की हमें आदत नहीं होती.
समझने वाइज हमें लगता है यार हमें सब समझ में आ गया। अब मुझे समझ में आ गया सोल ट्रेडर में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, कंपनी कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। अच्छा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, डिबेंचर्स वर्सेज डिविडेंड इक्विटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी ऑप्शंस अवेलेबल, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट कोटेशन, हाउ इज टेकिंग अ कोटेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंज मेकिंग माई शेयर्स मोर मार्केटेबल। इफ इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग I'm very clear with respect to understanding, but when it comes to actually execution in terms of making points, it can be very difficult because पहली चीज़ कुछ रटना तो है ही नहीं, रटना नहीं है, कुछ बुक से नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन में जो आया है वो हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इतना नहीं पढ़ा हुआ कि हम उसे 5 पॉइंट्स बना दें, और यहीं पर आपकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है। अब ये स्ट्रगल कुछ हद तक आईआईएस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, बिकॉज एटलीस्ट आपको समझना है कंटेंट को, चाहे उसकी एप्लीकेशन समझनी है। आपको ऐसा नहीं है कि हाँ आप जो सोच रहे हो आपको उसको करेक्ट मैनर में एग्जिबिट करना, आपकी प्रेजेंटेशन चाहे जैसी मर्जी हो, अल्टीमेटली बस आपको फाइनल आंसर पे रीच करना है। आईएफओ में क्या है, फाइनल आंसर पे तो रीच करना ही है, लेकिन वो फाइनल आंसर के बीच में हमें जो इतने पॉइंट्स बनाने हैं, दैट कैन बी अ स्ट्रगल फॉर आईएफओ स्टूडेंट्स विच इज़ करेंटली नॉट फॉर आईआईएस स्टूडेंट्स, एंड दैट स्ट्रगल इज कम्प्लीटली ओके। अगर अभी देखो, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया, अभी आपको ये स्ट्रगल आ रहा है, अभी ऐसे दिक्कत आ रही है कि हाँ मेरे पॉइंट्स तो बन रहे हैं, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू रीच टू दोज 5 पॉइंट्स विच एग्जामिनर हैज़ मेड। मेरे पॉइंट्स सिर्फ 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ एक ही पॉइंट मैच हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आते हैं। देखो इस पॉइंट पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल आ रहा है, इट्स ओके। और इसके लिए मैं आपको क्या एडवाइस करूँगी, एक ही तरीका है, डायरेक्टली पास पेपर्स लेक्चर्स नहीं देखने आपने, कंटेंट लेक्चर्स ख़त्म करो। पास पेपर्स लेक्चर्स को 2 बार बेशक आपको एक वीडियो देखनी पड़ जाए, फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू व्हाइल मेकिंग पॉइंट्स। जब आपको एक क्वेश्चन मैंने वीडियो में दिया तो आपकी वीडियो भी सेम पॉज हो जानी चाहिए, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करो एंड सी आर योर पॉइंट्स मैचिंग विद व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास। इफ नॉट, think again, pause the video there and then, think again कि why am I not able to make these points, am I not aware of these points, or is something lagging in my knowledge, or I am aware but I am not able to frame। if you are not able to frame तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन और इंग्लिश का इशू आ रहा है। तो CB1 में ये इशू है, जनरली फ्रेशर स्टूडेंट्स के साथ अगर ये इशू आ रहा है तो इट्स कम्प्लीटली ओके। धीरे धीरे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट इशू, स्टार्ट एनालाइजिंग कि अच्छा आई एम एबल टू एटलीस्ट थिंक द पॉइंट्स, चाहे मैं हिंदी में ही सोच रही हूँ बट एम आई एबल टू थिंक पॉइंट्स, इफ यस ओके। नेक्स्ट स्टेप, एम आई एबल टू मेक सर्टन पॉइंट्स आउट ऑफ इट। थर्ड स्टेप, एम आई एबल टू कन्वर्ट ऑल माई जनरल पॉइंट इनटू स्पेसिफिक और टेक्निकल कीवर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड। दैट इज अल्टीमेटली और लास्ट स्टेप कि मेरे आंसर में टेक्निकलिटीज आनी चाहिए। जनरल आंसर कोई भी लिख सकता है, लेकिन हर किसी का CB1 क्लियर नहीं होता। आपको एक्चुअल की नॉलेज यूज़ करनी है, CB1 का ट्रेंड यूज़ करना है, प्लस अपनी इंग्लिश यूज़ करनी है टू मेक द पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। तो स्टार्टिंग के अगर कुछ चैप्टर्स में इशू आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली ओके, यू जस्ट हैव टू वर्क मोर ऑन योर पास्ट पेपर्स, वर्क मोर ऑन योर असाइनमेंट्स, ट्राई टू डू मोर क्वेश्चंस विच आर सब्जेक्टिव, एंड बस धीरे धीरे विद हाउ वी आर प्रोसीडिंग, कीप ऑन प्रोसीडिंग। एंड स्पेशली आजकल क्या हो गया, जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन पे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी आर मूविंग टू न्यूमेरिकल सेक्शन, अकाउंटिंग वगैरह वाला जो हम सेक्शन कवरिंग। जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, आप कोई एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, यू फील यू आर ओके विद इट बिकॉज दैट्स अ न्यूमेरिकल थिंग, बट हो सकता है आपके पेपर में न्यूमेरिकल बिल्कुल टेस्ट ना। यू आर गिवन अ बैलेंस शीट एंड यू आर सपोज टू कमेंट ऑन योर वर्किंग्स यूजिंग दैट पर्टिकुलर फिगर्स। तो कमेंटिंग वाला जो पोर्शन है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन CB1 एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट विल टेक टाइम। For IFO students, you still have basically 2 months to prepare yourself. जितनी जल्दी आप कोर्स रैप अप करोगे बस उतना आपके लिए अच्छा है। सो दैट हम लोग क्या कर देंगे लाइव क्लास में, आई विल गिव यू मोर डिटेल केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस, और हम लोग पूरा का पूरा पास पेपर लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, आई विल ट्राई वी आर डिस्कसिंग द होल टुगेदर क्वेश्चंस इन द क्लासेज इटसेल्फ। और IFO वालों को MCQs पे इतना फोकस मत करो। आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप कंटेंट पे और सब्जेक्टिविटी पे फोकस करोगे ना, आप MCQ आराम से कर लो। और II वाले आप अपना पैटर्न वैसे ही कंटिन्यू रखो जैसे मैंने आपको बताया। अब आपको बस
थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये है कि आपको फ्रेमिंग की चिंता नहीं करनी, तो उससे आप अपने कंटेंट पे और ज़्यादा कवर करो। IFOA वालों को कंटेंट अगर कुछ नहीं भी आ जा रहा, उनके पास ऑप्शन है कि दे कैन रेफर टू द बुक, बट आपके पास ये ऑप्शन नहीं। तो वर्क मोर ऑन योर कंटेंट नाउ एंड मेक श्योर दैट यू आर 100% प्रिपेयर्ड फॉर द कंटेंट। कि अच्छा अगर फाइनेंस से रिलेटेड, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे वो बहुत छोटी चीज़ कि अच्छा वी आर इशूइंग टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो इन दिस केस इज प्लेसिंग एन ऑप्शन और इंट्रोडक्शन टेकिंग इज एन ऑप्शन। तो वहाँ पर आपको याद रखना, अच्छा यार प्लेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट अ फिक्स प्राइस में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंडर में हम लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पर आपको वो चीज़ें बस 2 मिनट के लिए आपको रिमाइंड करनी है अपने आप को, एंड देन यू आर रेडी विद द आंसर। IFOA में ये दिक्कत नहीं है। सो अपनी स्ट्रगल, II वालों की अपनी अलग स्ट्रगल चलेगी अब एग्जाम में, IFOA वाले की अपनी अलग स्ट्रगल चलेगी। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू एंड कीप कंटिन्यूइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो IFOA स्टूडेंट्स, यू डेफिनेटली नीड टू प्रैक्टिस। अभी अगर आप टाइप करके नहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप रिटन में भी अभी अपने पॉइंट्स, बिकॉज इस टाइम पर मुझे इशू क्या है कि आप लोगों के पॉइंट्स बने चाहिए। इस टाइम पे मुझे आपकी टाइपिंग से इशू नहीं है, टाइपिंग इज जस्ट अ थियोरी एग्जाम, हम लोग अगस्त में टाइपिंग पे वर्क अपॉन करेंगे। अभी हमें इशू क्या है कि आपके पॉइंट्स बनने चाहिए। तो अभी आपको अपने पास पेपर लेक्चर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सो दैट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर पॉइंट्स। एंड II स्टूडेंट्स, अभी आपको अपने कंटेंट लेक्चर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड है। तो आई हैव सेग्रीगेटेड योर टारगेट्स फॉर II स्टूडेंट्स। योर फोकस शुड बी मोर ऑन कंटेंट। द मोर you are ready with the content, the better you will be able to perform in MCQs. And जो भी आपके assignments की date है, I think it's going to be in next week assignments की deadlines. So do try to submit your assignments as per the deadline. और जब आप assignments करोगे ना, वहाँ पर आपको अपनी preparation का real check पता चलेगा, ठीक है? So guys, anything else that you want me to address in this session? Because आप लोगों के doubts तो आए नहीं, तो I thought कि okay, let me still come live and I will tell you how to prepare CB1 for upcoming IFOA and II attempt. Any more doubts that you have with respect to general pattern understanding or with respect to your preparation? CB1 is not easy. मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, it can turn out to be very difficult if you are not thorough with your English skills as well. ठीक है, तो अब गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मेन सेक्शन ऑफ अकाउंटिंग. आई विल बी टेलिंग यू, विल बी टेकिंग यू थ्रू डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ बैलेंस शीट प्रिपरेशन एंड कैलकुलेशन पोर्शन. तो दीज क्लासेस आर important for both IFOA as well as II students, because I am repeating, in case even if it is MCQ, it does not mean a numerical question cannot be tested in MCQ. आप अपनी सारी कैलकुलेशंस रफ वर्क में करना, बिकॉज मान लो आपके पास उसने ट्रायल बैलेंस दे दिया, उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी और उसने आपको MCQ में पूछ लिया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर केस. तो अब वो करंट लाइबिलिटीज अराइव करने के लिए हमें सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करनी है, तभी तो हम करंट लाइबिलिटीज पे आएंगे. और उसी से रिलेटेड उसने रेशियो के क्वेश्चंस पूछ लिए. बस डिफरेंस क्या आएगा कि जो IFOA वालों के लिए स्ट्रगल है कि मान लो 2 कंपनीज की बैलेंस शीट और वो आपसे पूछेगा कि कौन सी कंपनी की बेटर है, उसमें हमें इतने सारे पॉइंट्स बनाने होते हैं. आपको बस वो ओवरलुक करके ये समझना है कि अच्छा विच कंपनी इज बेटर. आपके लिए लिखने की दिक्कत नहीं. IFOA वालों के लिए लिखने का इशू अभी भी है, और उस लिखने के इशू को कम करने के लिए यू रियली नीड टू प्रैक्टिस वेल इन योर पास्ट पेपर्स. So either go through entire summary list. If you don't want to go through the summary list, just make sure that you're completing all your past papers lectures. If you are finding less time to watch past paper lectures, मैं कह रही हूँ आप बेशक जितना मर्जी आप धीरे धीरे चलो. अगर अभी आप चैप्टर 1-2 के पास पेपर लेक्चर्स भी देख रहे हो तो भी इट्स ओके, बिकॉज पास्ट पेपर लेक्चर्स वॉचिंग इज दैट मीन्स यू आर जस्ट रिवाइजिंग ओनली. तो जब आप अगर आप अभी तक ट्रैक ऑफ द बैच पे नहीं भी चल रहे हो, बैच अगर मान लो चैप्टर 5 पे चल रहा है, आपका चैप्टर 1 पे चल रहा है, तो भी इट्स ओके. एटलीस्ट यू आर कवरिंग एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम. दैट्स द मेन पॉइंट. ठीक है गाइस, सो एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप फॉर द डे?
Okay, then no other question. Then see you in the next session with our main accounting concepts discussion. So do try to wrap up the lectures corresponding to that. You will be getting your targets also by Monday. तो बस अब मंडे तक आप ये ट्राई करो कि सारे ये वाले जो चैप्टर्स हमारे कवर हो गए हैं उसके आप वीडियोस और पास्ट पेपर्स लेक्चर्स जल्दी से रैप अप करो सो दैट यू कैन फोकस मोर नाउ ऑन द बैलेंस शीट प्रिपरेशन. और ये जो है ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है. अगर आपने बीच में चैप्टर 4, 5, 6 नहीं भी किया है तो भी इट्स ओके. यू कैन डायरेक्टली मूव टू दिस इंडिपेंडेंट टॉपिक इफ यू आर जस्ट क्लियर विद कि कंपनी कैसे ऑपरेट करती है और हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं. हम लोग डायरेक्टली आप अकाउंटिंग वाले चैप्टर्स पर मूव कर सकते हो. वो आप अपना साइमल्टेनियसली चलाते रहो, धीरे धीरे उसके लेक्चर्स रैप अप करते रहो एंड इसके कंटेंट पे फोकस करना आप स्टार्ट कर दो. ओके देन, सो विद दिस वी रैप अप फॉर द डे. थैंक यू.